नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे 3 मेहमान हैं। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, अमित खरे हैं गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड से और जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी हैं। ये तीनों मेहमान आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, माइकल डी रिएंजो हैं, प्रेसिडेंट हैं सिल्वर इंस्टीट्यूट के। उनसे समझते हैं चांदी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट क्या है। थैंक यू मिस्टर माइकल, आफ्टर सच ए लॉन्ग टाइम इन इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू इन आवर शो सर. So the kind of development we are seeing globally, either it's a tariff war or kind of geopolitical tension we are seeing, what kind of impact you are seeing and what's your assessment as a Silver Institute president? How do you assess the entire development in silver market? How is it going to impact silver? Well, first of all, thank you for this opportunity. On behalf of the Silver Institute and our members, we appreciate coming on your show. There was a lot of geopolitical uncertainty in the world, from wars to tariff threats to trade imbalances. It's affecting the precious metals complex quite hard, but in a positive way. I mean, gold is up about 35% this year. Silver is up about 34.5% this year. This is coming off of a 21% increase in 2024. It's affecting all aspects of the market. But the key area where we're seeing a lot of frothy interest is in investment. So one more thing, Mr. Di Rianjo, over the next 5 years, what will be the biggest driver of silver? Industry demand, jewelry demand, or investment demand? Combination of industrial and investment, but it will be led by industrial demand. Investment demand in 2024 slipped, but this year, through the first half of 2025, we've seen more silver inflows into exchange trade products than we did in the entire year of 2024. We're seeing robust demand for coins and bars in certain regions of the world. And we think that category is going to increase by about 7% this year. Going down the road 5 years, that's always hard to say. But nonetheless, speaking specifically to 2025, it's going to be a great year for silver investment, the silver price, and for industrial demand. One more thing, today I was reading a report about the silver demand in solar panel, particularly in China. Do you have any report related to demand of silver in solar panel industry? Yeah, I do. And quite frankly, it's interesting in China. China announced in February of this year new solar and renewable energy pricing regulations, which is sort of affecting the market. But we still think their full year installations will remain at about 250 gigawatts, which is quite impressive. China has led the world for the last 4 or 5 years with respect to solar power installations. The United States, India, and other countries are a little behind, but nonetheless, these installations are going to continue regardless of any policy that takes away incentives to install solar panels. For example, in the United States, the Congress just passed legislation which takes away the incentive to put solar panels on a private residence, but still people are doing it otherwise. The same thing with electric vehicles. Electric vehicles are really penetrating global auto sales these days. And of course, silver is the key component of both those technologies. You already shared the data of China, but where does India rank globally in silver demand? Which segment in India, jewelry, investment, or industry offers the strongest growth potential? How do you see this? I would say with the jewelry demand, and we think that's going to pick up this year. It slipped a little bit in 2024. So when it comes to silverwares and jewelry demand, we think India is going to have a very strong year. And quite frankly, on the investment side,
India is going to have another strong year. For example, when you look at exchange traded products, when you look at the digital aspects of investing in silver, India is really pulling its share of the global demand, and it's going to have a bright future with respect to ETPs, silver coins, silver bars, and other silver investment products. Think already recently our Indian regulator, Bureau of Indian Standard, they have issued a guideline on silver hallmarking. So how do you view India's hallmarking regulation and import policy affecting the global market? Well, I don't know how much it's going to affect the global market right off the bat. We'll have to wait and see on that. But I think it's great that, these industries are coming together and coming up with a uniform idea. I don't know how it's going to affect the market. We just got back in April from the India Silver Conference, and we're beginning to start working with all the key players in the India silver market to establish a cohesive and unified effort among your key silver users and associations to help drive further silver demand in your country. One more thing, do you expect silver to outperform gold in the coming years? Why or why not? Know if it will outperform, but quite frankly, with just a 0.5% increase or behind in with respect to the silver price on an average basis or the gold price, silver is really pulling its way. So 35% demand growth this year with respect to the silver price is quite impressive. Gold is a different animal. It has set successive records throughout 2025. And silver has yet to break the 40-ounce mark, which we think could happen quite shortly. We're punching up against 38 right now. I see 39 in the very near future, and certainly $40 by the end of the year. By end of the year, you are expecting $40, so it's your price target. So thank you so much, sir, for taking your time out for ET Now Swades for Times Network. Thank you so much, sir. Much. Thank you, sir. चलिए आगे बढ़ते तो ये थे सिल्वर इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट माइकल डी रियांजो, जिनसे आपने सुना कि सिल्वर को लेकर क्या कुछ चल रहा है। उनको लग रहा है कि सिल्वर आगे भी आउट परफॉर्म सोने को कर सकती है, चांदी की तेजी जारी रह सकती है। $40 तो उन्हें इस साल ही दिखता है और आगे फिर $50-60 के ऊपर भी जाती चांदी उनको दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे तीनों मेहमान भी बने हुए हैं और बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल भी आ रहे हैं। एक एक करके वो सवाल भी लेते चलेंगे और हम अपने मेहमानों से सवाल भी पूछ लेंगे। बाबू लाल हैं, 1 लाख के भाव पर चांदी में इन्होंने बिकवाली कर रखी है। अनु जी, क्या करना चाहिए? चांदी काफी नीचे इन्होंने बेच दिया है, अब तो चांदी 1 लाख के आसपास नियर टर्म में दिख नहीं रही है। आपकी राय क्या है सर? नमस्ते विश्वमोहन जी और सभी दर्शकों को भी नमस्ते। चांदी अभी 1,15,000 के आसपास में चल रही है। नियर टर्म में कोई भी एक इंडिकेटर या कुछ भी ऐसे कोई कैटलिस्ट नहीं है जिसमें ये दिख रहा है कि चांदी नीचे आ सकती है। नीचे में एक सपोर्ट हमको दिख रहा है 1,12,000 का, और अगर वो ब्रेक करता है तो 1,09,000 तक आ सकता है। उसके नीचे एक बार फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऊपर में 1,18,000 1,20,000 तक जाने की उम्मीद है इसके अंदर में। सलाह है चांदी को लेकर। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, अजित जायसवाल हैं। 1,12,600 के भाव पर चांदी की खरीदारी की है। मानव, क्या करना चाहिए इनको? 1,12,600 की खरीदारी है, ठीक ठाक फायदा हो रहा है, बने रहें क्या? अगर बने रहना है तो एसएल भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। नमस्ते विश्वमोहन जी। मेरे ख्याल से अजीत जी को आज बहुत अच्छी रैली भी हुई, बहुत अच्छा एक तेजी हमें आता हुआ दिखा है। बिल्कुल आज के दिन के लिए एक बार अगर 1,15,500 के ऊपर नहीं टिकता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शायद थोड़ा नीचे मिलेगा, फिर उसे वापस से अक्यूमुलेट करने के लिए देखना चाहिए, तो एवरेज भी अच्छा होगा। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदा है तो 1,16,000 तक के लिए भी ये रैली दिख सकती है। लेकिन लाइक आई सेड 1,15,500 1,15,300 के ऊपर अगर नहीं टिकता है तो पार्शियल प्रॉफिट एक बार ले सकते हैं। अगले दर्शक है अनमोल यादव है, सिल्वर मिनी में आज क्या करे? अमित जी, क्या करना चाहिए सिल्वर मिनी में? सिल्वर के प्राइस मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल लाइफ टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। 1,16,000 के आसपास का इसका जो है प्रीवियस हाई था।
मेरे को लग रहा है प्राइस यहाँ से हल्का फुल्का करेक्शन या फिर मुनाफा वसूली दे सकते हैं। अगर ये इंट्राडे ट्रेडर हैं तो इनके लिए एक शॉर्ट साइड का ट्रेड मेरा इसमें रेडी है 1,15,400 के आसपास। बड़ी सिल्वर के माफ कीजिएगा, बड़ी सिल्वर के लेवल मैंने निकाले तो इसके अकॉर्डिंग जो है मिनी सिल्वर में ट्रेड बना सकते हैं। 1,15,400 रुपए के आसपास बिकवाली करें। 1,16,000 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको लगा के चलना है। नीचे में इंट्राडे में अगर गिरावट ज्यादा मिलती है तो 1,13,000 के आसपास के भाव देखने को मिल सकते हैं। प्राइजेस जो है 1,16,000 के ऊपर अगर निकले तो इसमें एक नई खरीदारी देखने को मिलेगी, अदरवाइज इस लेवल के आसपास जो है मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा 1,16,000 के ऊपर निकलता है तो नई तेजी दिख सकती है चांदी में, अमित जी का ये कहना है। तो और लेकिन अगर करंट लेवल के आसपास टिकता है तो इनको लग रहा है कि थोड़ी मुनाफा वसूली आ सकती है, वापस से चांदी 1,13,000 तक आ सकती है। प्योरली ये ट्रेडिंग कॉल है, एसएल का भी ध्यान रखिएगा। ओमकार है, सोने में किस भाव पर एंट्री ले? मानव, किस भाव पे सोने में एंट्री करनी चाहिए ओमकार जी को? मेरे ख्याल से 1,02,000 के करीब अगर वापस से आता है तो बिल्कुल बाई किया जा सकता है। ओवरऑल जब तक 99,500 टिका हुआ है नीचे में, तब तक जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नीचे में 1,02,000 1,01,000 के आसपास आता है तो बाई किया जा सकता है 1,01,000 के टारगेट से, और 99,700 99,500 का स्टॉप रहेगा। दर्शक है अल्पेश सोनी है, गोल्ड मिनी में आज के लिए ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी आपके पास? अमित जी, ऑप्शंस की कोई स्ट्रेटजी है क्या गोल्ड मिनी में? गोल्ड मिनी में देखा जाए तो अभी भाव चल रहा है गोल्ड, बड़े गोल्ड के हिसाब से मैं प्राइजेस अभी बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये मिनी में ट्रेड बना सकते हैं। अक्टूबर वाला गोल्ड लगभग अभी 1,03,000 के आसपास चल रहा है। सितंबर वाला गोल्ड मिनी भी स्क्रीन पे लगा है, उसका भाव है 99,770 के आसपास। अगर प्राइजेस यहाँ से 1,00,000 के आसपास मिलते हैं सितंबर वाला गोल्ड मिनी के, तो यहाँ पे भी 1,00,000 का पुट ऑप्शन जो है इंट्राडे के लिहाज से बाय कर सकते हैं। 1,00,000 के आसपास पुट अगर मिनी गोल्ड के भाव मिले तो 1,00,000 का मिनी गोल्ड का पुट ऑप्शन बाय करना है। वहां पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है और इंट्राडे में 300 350 पॉइंट का टारगेट रख सकते हैं। जी विस्मत जी। ओके, अगले दर्शक है हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? अनुज जी क्या करे एनजी में? जी, नेचुरल गैस के अंदर में ट्रेंड नीचे की तरफ में है। हमने देखा है कि कंटिन्यूस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बना रहा है। 360 रुपए से कंटिन्यूस एक गिरावट आई है, अभी 247 के आसपास में चल रहा है। ऊपर में कुछ भी शॉर्ट कवरिंग आती है 249 250 लेवल के आसपास आए तो उस पर शॉर्ट करके चलना चाहिए सेलिंग। ऊपर में स्टॉप लॉस रहेगा 255 के ऊपर में, और नीचे में टारगेट देख सकते हैं 242 और 240 तक। अगले दर्शक है परवीन है पुणे से, गोल्ड में और नेचुरल गैस में दोनों में स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं। मानव क्या राय है, गोल्ड में भी दे दीजिए और एनजी में भी दे दीजिए। जी बिल्कुल, गोल्ड में अगर देखें, जैसे मैंने कहा 1,02,000 1,01,000 के आसपास अगर आता है तो सोना खरीदा जा सकता है फिर से एक बार। ऊपर में 1,01,000 तक के टारगेट देख सकते हैं। नीचे में 99,700 99,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। सिमिलरली नेशनल गैस के बाद नेशनल गैस में अभी भी मंदी जारी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नेशनल गैस में 252 के आसपास अगर आता है, थोड़ा सेल ऑन राइज है लेकिन 252 के करीब आता है तो बेचा जा सकता है। 242 का टारगेट होगा, 258 का स्टॉप लॉस होगा। थोड़े लंबे समय के लिए भी अगर नेचुरल गैस 242 के नीचे सस्टेन होता है तो और थोड़ी ज्यादा गिरावट आ सकती है नेचुरल गैस में। फहीम है अमरोहा यूपी से, कच्चे तेल में ऑप्शंस की रणनीति जानना चाह रहे हैं। बताइए अनुज जी, क्रूड ऑप्शंस पर क्या राय है? पुट के अंदर में ओवरऑल ट्रेंड नीचे की तरफ में है। अभी 500 का जो पुट है इसके अंदर में बाई करके चलना चाहिए। थोड़ा डिप्स आए तो अभी 56 रुपए के आसपास चल रहा है, नीचे में 52 से 53 रुपए के आसपास आए तो नीचे बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 40 रुपए के नीचे और ऊपर में टारगेट रहेगा 75 से 80 रुपया। ओके, दिनेश पुनिया है बाड़मेर से, जीरे का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहा है कि इंतजार करें या बेच दें। जीरा काफी समय से सुस्ती और नरमी दिखा रहा है। अमित जी, अब आगे क्या राय है दिनेश जी के लिए जीरे में? ओवरऑल ट्रेंड देखा जाए तो वीक है। अगर इनके पास फिजिकल में पोजीशन है तो मेरे को लग रहा है इतना बड़ा मोमेंटम अभी 1 से 2 महीने में इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एज पर ट्रेडिंग कॉल अगर मैं बात करूं तो 19,600 के आसपास एज पर सितंबर वाला जीरा एक फ्रेश बिकवाली का ट्रेड किया जा सकता है। नीचे में 18,600 रुपए के टारगेट रख सकते हैं, ऊपर में 20,100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। भाव जब तक 20,000 20,100 के नीचे है तब तक इसमें ट्रेंड नेगेटिव
नेगेटिव बना रहेगा। तो अगर इनके पास फिजिकल में कोई भी पोजीशन है तो आधी क्वांटिटी को ये 19,600 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। आधी क्वांटिटी को अगर ये फिजिकल के ट्रेडर हैं लंबा समय में रख सकते हैं तो वहां पे होल्डिंग की पोजीशन भी की जा सकती है। मोहम्मद फरहान है, इस महीने मेंथा ऑयल का भाव कहां तक जा सकता है? अमित जी, आप मेंथा ट्रैक कर रहे हैं क्या? मेंथा ऑयल का प्राइस जस्ट अ मिनट मैं चार्ट पे अभी लगा लेता हूँ। बता दीजिए इनको कि भाव कहां तक जा सकता है। अच्छी तेजी है, अच्छी रिकवरी। 900 के नीचे से जो रिकवरी शुरू हुई 1050 के करीब गया, लेकिन अब थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिखी है। आगे क्या हो सकता है, अगर आप चार्ट देखकर बता दें कि मेंथा की चाल कैसे दिख रही है। हालांकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन तो भी आप एक बार उनको एक रेंज बता दें तो बेहतर होगा। आज 988 के आसपास है। बिल्कुल, मेंथा ऑयल का जो रेंज है काफी समय से हम देख रहे हैं 900 880 के आसपास जाता है, ऊपर में 1000 1050 के आसपास जाता है। यही रेंज इसकी अभी काफी टाइम से नजर आ रही है। अभी इसका मैं जैसा कि चार्ट देख पा रहा हूँ निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिली है। 988 का इसने आज लगभग क्लोजिंग दिया। कल इसने देखा जाए तो 1045.50 के आसपास का हाई बनाया था। एक टॉप फॉर्मेशन जो है अभी इसमें ऑलरेडी हो चुका है। कल इसने एक रिवर्सल कैंडल बनाया है डाउन साइड के लिए, शूटिंग स्टार जिसको कि हम लोग टेक्निकल में बोलते हैं। तो अगर इनके पास माल है तो बिल्कुल एक बार के लिए इनको एग्जिट होना चाहिए। अगर फ्रेश पोजीशन ये बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल 1000 के आसपास कहीं पर भी बिकवाली की जा सकती है। 1025 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। नीचे में मेरे को लग रहा है 945 के आसपास के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। 945 आने पर ये वापस फिर से खरीदारी कर सकते हैं। 945 नीचे में आ सकता है, वहां पर भाव आए फिर नई खरीदारी करे। अगले दर्शक है हमारे साथ, क्रिश है दिल्ली से, राहुल है मुंबई से। कॉपर पर ही सवाल है। मानव, आप बता दीजिए, गाइड कर दीजिए इनको कि कॉपर पे क्या करना चाहिए इनको। बिल्कुल विश्वनाथ जी, बहुत अच्छी रिकवरी आई है कॉपर में। जिस पेस में गिरावट आई थी उसी पेस में एक रिकवरी हम कॉपर में आती हुई देख रहे हैं। मेरे ख्याल से काफी समय से हम कॉपर में एक बाय एंड डिप्स की सलाह रख रहे हैं। बीच में बिल्कुल थोड़ी कॉशियसनेस थी, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि कॉपर ओवरऑल बाय एंड डिप्स की सलाह होगी। 891 के आसपास बाइंग की जा सकती है। 886 का स्टॉप रहेगा, 900 का टारगेट होगा। अगर 900 भी क्रॉस होता है तो ऊपर में 910 915 के लिए भी प्राइसेस जा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं रबर इंडस्ट्री को लेकर। रबर इंडस्ट्रीज पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि सिंह हैं, जो रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के। शशि जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। सर, अमेरिकी टैरिफ की वजह से तमाम इंडस्ट्री परेशान है, आपकी भी इंडस्ट्री परेशान होगी। क्या दिक्कतें हैं और आप लोगों ने सरकार के सामने क्या डिमांड रखी है, और जो मौजूदा स्थिति है उससे बचने के लिए आपने क्या सलाह दी है? आप लोगों के क्या सजेशंस हैं? इसमें सर ऐसा है कि 50% जो टैरिफ है उसमें 25% टैरिफ तो एक चालू हो गया था और 25% एज ए पेनाल्टी लग गया। और इससे जो इंडस्ट्रीज को ओवरऑल हर एक इंडस्ट्रीज को ही प्रॉब्लम है, रबर इंडस्ट्रीज में भी ये प्रॉब्लम है। हमारे लिए थोड़ी सी एक गुंजाइश की बात है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ऑटोमोटिव सेक्टर को उन्होंने अलग रखा है, इसमें उस पर पेनाल्टी नहीं लग रहा है। तो आपके पैसेंजर कार्स हो गए और आपके जो ट्रक्स एंड बसेस हो गए, इसके जो टायर्स हैं उसके ऊपर अभी तक 25% 26% ही ड्यूटी है, पेनाल्टी नहीं लगा है। बट अदर रबर प्रोडक्ट्स पे ऑलरेडी पेनाल्टी का 28 तारीख से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और इंडस्ट्रीज काफी डिस्टर्ब है इससे, क्योंकि हमारा टोटल जो है एक्सपोर्ट वो 7,500 करोड़ का है यूएस को, और इंपोर्ट जो है वो 2,200 करोड़ का है यूएस से रबर सेक्टर में। ओके, और ये पूरा इम्पैक्ट करेगा इसके लिए। ओके सर, तो क्या लग रहा है आगे स्थिति कैसे बदलती है? आप लोगों ने तो डिमांड रखी होगी ना, एफटीए को लेकर तो बातचीत चल रही है, उसमें टाइम लग सकता है, तब तक क्या करना है सर? जी देखिए, अभी क्या है कि अभी इंडस्ट्रीज को तो इमीडिएटली गवर्नमेंट से जो सब्सिडी कोई तरीके से इंसेंटिव किया जाए, ड्यूटी ड्रॉबैक स्पेशली दोज हु आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस, और एफटीए जितना जल्दी तेजी से और बढ़े, जैसा कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ने यूके के साथ कंप्लीट किया। तो ऐसे जैसे एफटीए वगैरह में जो इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ेगा और इंसेंटिव करना पड़ेगा स्मॉल सेक्टर को, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर को, और एमएसएमई को भी, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को भी अब इस तरह के सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जो कहते हैं आपदा में अवसर अब ढूंढना पड़ेगा, और ताकि दूसरे कंट्रीज के लिए और
और हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन से को हैंडल करने के लिए। ओके, आपके पास और कौन कौन से विकल्प बचते हैं जो यूएस के मार्केट को रिप्लेस कर सकता है? नहीं, आप बाकी और किसी कंट्रीज में, आपके यूरोपियन कंट्रीज में आपके अच्छे काम बन सकते हैं, अगर वहां पे आपको फोकस करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज को कि उस सेक्टर में आप एंटर करें। और यूएस में भी आप अभी आपका एकदम इमीडिएटली तो बंद नहीं होने वाला है। जहां जहां पे कुछ ऐसे भी हमारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमारे पास मोनोपोली काइंड ऑफ थिंग्स है, तो वो चीज तो वहां पे चालू रहेगी। ऑटोमोटिव सेक्टर को थोड़ा सा रिलीफ नजर आ रहा है, ताकि 26 से ऊपर नहीं जाएगा। सबसे बड़ा इंपैक्ट जो आ रहा है अभी, जो चाइना के साथ उनका जो तालमेल चल रहा है वो, और फिर देन आपके सेक्टर में वियतनाम है, थाईलैंड है, मैक्सिको, इनकी जो ड्यूटीज है हमसे काफी कम है, तो ये लोग हमको इम्पेक्ट कर सकते हैं। पाल सर, छोटा जवाब दीजिएगा, प्राइस को लेकर, रबर प्राइस को लेकर क्या आउटलुक है? अभी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है मुझे, 200 के आसपास ही रहेगा। इमीडिएटली तो कुछ इम्पैक्ट नहीं नजर आ रहा है नेचुरल रबर। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, पूरी इंडस्ट्री के हालात पर, आप लोगों की जो परेशानियां हैं वो हमसे शेयर की, और इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी आवाज़ सरकार तक भी पहुंचे, ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू कर लेते हैं हमारी खास